A very good morning to all my dear students. So, students, today we'll take the poem number 7, Animals, written by Walt Whitman from your 10th standard. So, what this poem is about, as the name indicates, animals. So, here the poet is appreciating the animal world. Fine. He is making comparison between human world and animal world, and he is finding animals more placid, more content than human beings. Fine. So, let's see what Walt Whitman says about the poet. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. So, one thing is clear, that Walt Whitman was an American poet. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. So, this is a different kind of the rhyme scheme that usually the other poets during that time were writing. So, he wrote in a different manner. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. Now say what this poem is about and how he is appreciating the animal poem. When you go through the text, you'll understand what this exactly about. So let's start the poem. Animal poem and an explanation. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. तो यहाँ पे पोएट, यहाँ पे जो आई है वो पोएट है. पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि मैं ये जो दुनिया है यहाँ से जा सकता हूँ. कौन सी दुनिया? ह्यूमन वर्ल्ड. फाइन, यहाँ से टर्न ले सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ. एंड लिव विद एनिमल्स, और कहाँ जाके रह सकता हूँ? एनिमल्स के बीच में. देखो बेटा, अब हर कोई टार्जन तो नहीं हो सकता ना, या मोगली तो नहीं हो सकता ओबियसली, जो उसमें रह जाए एनिमल वर्ल्ड में या फॉरेस्ट में. अब हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस के बीच में ही रहेंगे. लेकिन पोएट कहता है मुझे लगता है कि मैं इस सोसाइटी से टर्न लेके एनिमल्स के साथ जाके रह सकता हूँ. क्यों रह सकता हूँ? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत शांति प्रिय हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और वो सेटिस्फाइड रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और कहता है मैं खड़ा होके उनके वर्ल्ड को, उनको निहारता हूँ, बहुत देर तक सोचता हूँ कि भाई ये एनिमल्स हैं, ये इतने ज़्यादा सेल्फ कंटेंट कैसे हो सकते हैं. अब सेल्फ कंटेंट की बात सुनो. कोई भी एनिमल है, वो कोई शिकार करता है. फॉर एग्जांपल टाइगर को लो आप. टाइगर ने कोई शिकार किया, फाइन, उसको जितनी भूख है वो खाएगा, बाकी वो उसको वहीं छोड़ के चला जाएगा. या आपने किसी टाइगर को देखा है कि बाकी सारी चीज़ें जो बच गया, जो मांस बच गया, या जो भी उसका शिकार का जितना पार्ट बच गया, वो उसको ड्रैग करते हुए अपने केव के अंदर लेके जाए और सोचे इसको मैं लंच में करूँगा, इसको मैं डिनर में करूँगा. नो, वो ऐसा नहीं करते. वो जितना है उतना खाते हैं, बाकी वहीं पे छोड़ के वो आगे बढ़ते हैं. सो दे आर नॉट वरीड अबाउट थिंग्स, दे आर नॉट इन हैबिट ऑफ पोजेसिंग द थिंग्स, जो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि सेव करो सेव करो. फाइन. सो एक बार हम इसका ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द पोएट सेज दैट ही वॉन्ट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल. Here we can say that the poet finds the world of animals better than that of human beings, as we have discussed. He further says that he finds animals more peaceful than humans. He says so because animals are not running after worldly things like human beings. They are calm and have no greed for worldly things or any kind of achievements. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. They are self-contained means they are happy with life and never interfere in the lives of others. Humans have the habit of interfering in the lives of others. So poet thinks that animals are better than human for being calm and not interfering in the matter of others. The poet further says that these are the reasons why he stands still and looks at the animals for a very long time. So I hope these 4 lines are clear to you. Proceeding. They do not sweat and whine about their condition. Whine होता है cry. Fine. So they do not sweat and whine about their condition. वो अपने दुख दर्द के ऊपर रोना धोना, मतलब किस्मत को कोसना, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या मेरे साथ ही ऐसा कुछ, इस तरीके का वो कोई कंडीशन क्रिएट नहीं करते हैं. देखा कभी से किसी एनिमल को ऐसे अपने डिप्रेशन में जाते हुए, या फिर इस तरीके से सैड? नो.
दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात भर जाग के अपने सिंस के लिए, अपने रॉन्ग डूइंग्स के लिए रोते नहीं हैं। अब इसका क्या मतलब है वो देखो, हम ह्यूमन बींग्स ना बेटा, हम बाहर चाहे कुछ भी प्रेजेंट करें, लेकिन हमने कोई चीज़ गलत की है या फिर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें इंटरनली उस चीज़ के बारे में पता होता है, तो हम उसको रियलाइज़ भी करते हैं। और कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि हम उसका पछतावा भी करते हैं। बट एनिमल्स के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और कहते हैं कि वो मेरे को अपनी ड्यूटी गॉड के लिए गॉड को हमें क्या देना चाहिए था, गॉड ने ऐसा क्यों किया, गॉड के मतलब ये सारी चीज़ें बात कर करके वो मुझे सिक फीलिंग नहीं देते, मुझे इरिटेट नहीं करते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। डिपेंडेंट होता है मैड। फाइन। तो कहते दे डू नॉट मेक सॉरी नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपनी लाइफ से खुश ना हो, जो अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो। या फिर कोई भी ऐसा नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया। मैनिया होता है पागलपन, और किसी के भी अंदर ऐसा पागलपन नहीं है कि चीज़ों को ओ किया जाए या चीज़ों को स्टोर किया जाए। फाइन। So here sweat here means complained. At the first line we are they do not sweat or complain. So I hope this is clear to you. अब इसकी भी एक brief सी हम जरा पढ़ लेते हैं. The poet says that unlike humans, animals don't complain of any misery. They never cry out loud like humans do. They show what they have lost. To show what they have lost. They never stay awake in the night crying in the repentance होता है पछतावा of their wrongdoings. This means that animals are different from human beings because they don't show anger or grief if something wrong happens with them. He further says that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. He says so because most of the human beings do this. They try to show their good deeds and religiousness to others. They do so in order to gain popularity among their fellows. दिखावा करना, हम अच्छाई का भी दिखावा करते हैं। अब आप देखो ना, किसी गरीब को अगर कुछ दे भी रहे हो तो हम उसकी सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाएँ और हम उसके लिए अपने आप को एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर पाएँ। So the poet thinks that animals never irritate him by doing such things just to gain some praise from their fellow people. उन्हें कोई praise की या इन चीज़ों की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. He feels that the animals are not dissatisfied like humans. They stay happy with whatever they have. They never run behind worldly things. They never try to possess things of comfort or luxury. He says that none of them is mad behind owning the worldly things. I hope this is clear to everyone. इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है. Now see, not one kneels to another. Kneels होता है bow down. अब ये हम ह्यूमंस की ना बेटा एक बहुत, आप कह सकते हो कि आदत सी है सबकी कि एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना और एक दूसरे से आगे बढ़ना. एक छोटे से बच्चे से भी आप स्टार्ट कर लेते हो, या आपकी एज में हम बात करें तो भी आपके अंदर भी कंपटीशन है कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है. ये क्लास में होता है ना, इसको हाफ मार्क्स कैसे मिल गया, इसको 1 मार्क ज़्यादा कैसे मिल गया. तो आप क्या कर रहे हो? आप एक दूसरे को नीलिंग डाउन करने की कोशिश कर रहे हो. तो देखो, नॉट वन नील्स टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. भाई देखो, हमारी जो सुपीरियरिटी है ना ह्यूमन बींग्स में, सबसे ख़राब चीज़ है. एनिमल्स में आपने देखा है कि लायन जो है वो जंगल का किंग है, फॉरेस्ट का किंग है, और सारे के सारे उसको सैल्यूट कर रहे हैं या उसके वेलकम में खड़े हैं. ऐसा कुछ होता है? नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं. या उसको कोई बहुत बड़ा ताज दे रखा है. लेकिन ह्यूमन में देखो, जो रिच पर्सन है, जो किंग है, उसके सामने कैसे हर कोई क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रेस करने में लग जाएगा. तो ये चीज़ उनमें नहीं होती है. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. दे इन्वाइंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस. टोकन्स होता है क्वालिटीज़. फाइन. तो कहता है कि दे शो देयर रिलेशंस टू मी. वो रिलेशंस मुझे सिखाते हैं कि लिमिट में, ना किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ना किसी को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना. फाइन.
एंड आई एक्सेप्ट दैम, और कहते हैं मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल भी है. दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और मुझे मेरी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं. दे इन्वाइट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन, और वो इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं. देखो अगर आपको अब थोड़ी भी प्रॉब्लम रहेगी ना तो हम इस समरी से उसको सॉल्व करते हैं. Here the poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone by bowing down in front of the person. जैसा मैंने आपको बताया कि किंग है तो ऐसा नहीं है कि किंग की सेवा में सारे के सारे एनिमल लगे हुए हैं, कोई पानी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. They never do so even for their ancestors. They do not show devotion towards God like humans do. No one among them is more respectable or important as we have in human society. तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई. इन ह्यूमन बींग्स रिच पीपल आर जनरली गिवन मोर इम्पोर्टेंस एंड आर ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू द पुअर. बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो. दे नेवर गिव मोर और लेस इम्पोर्टेंस टू एनी अदर एनिमल. Everyone in the animal world is happy. They are not like human beings who find themselves the happiest or the saddest person on earth. Further, the poet says that animals are more honest in showing their relations with other animals. Fine. Here he wants to say that animals use other animal as their food and they never try to hide this. मतलब जैसे हैं वैसे ही वो सामने हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लायन है वो किसी गोट का फ्रेंड है और उसके बाद उसने उसको डिच किया. नहीं, पता है ये एक सबको पता है कि भाई लायन है तो वो शिकार करेगा ही करेगा एनिमल्स का, या कोई भी एनिमल जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक एनिमल का करेगा शिकार. Here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this, whereas human beings show that they have nice and friendly relations with others, though the reality is opposite. The poet says that he accepts the fact that animals are true towards showing their relation with other animals. तो यही रीज़न है टोकन्स जो बताया है, और कहता है accept those relations. Now the last one, I wonder where they get these tokens. कहते हैं tokens qualities माइंड. तो कहता है मैं हैरान हूँ कि ये क्वालिटीज़ उनके अंदर कहाँ से आती है. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Negligently होता है carelessly. तो कहते हैं क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ थी काइंडनेस की और हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलने की, या फिर मैंने इनको कहीं ड्रॉप कर दिया है. ये लास्ट में एक क्वेश्चन है जो पोएट हमारे लिए यहाँ पे छोड़ के जाते हैं. सो एट लास्ट द पोएट इंट्रोस्पेक्ट्स होता है आत्ममंथन, चिंता करना, हिमसेल्फ, एंड सेज दैट फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गॉट दोज क्वालिटीज. ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज ओन गुड क्वालिटीज आर गॉन. फाइन. डिड ही लेफ्ट दैम और हैड केयरलेसली लॉस्ट दैम समवेयर. द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट, जो ह्यूमन बींग्स में पहले कौन सी क्वालिटीज़ मिलती थी, इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, वो अब इंसानों में ना मिलकर किस में मिलती हैं, एनिमल्स में मिलती हैं. ही वंडर्स दैट ह्यूमंस गेव अप दीज क्वालिटीज़ एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन टू द एनिमल्स. और कहता है कि हमने नेग्लिजेंटली यानी कि केयरलेसली ये सारी क्वालिटीज़ अपनी खो दी हैं, और अब ये क्वालिटीज़ जो ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी वो किसके अंदर है, एनिमल्स के अंदर है. So I hope this poem is clear to everyone. This is a very simple poem. So poem number 7. Fine. Study it.